Okay, now we'll be starting loops. So loops की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी और हम कैसे इसको कर सकते हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन से समझ सकते हैं. Then we'll be able to use loops in our program, like a repetition of a statement or a set of statements, finite or infinite number of times, is known as a loop. Means repetition of the statement. Ab, whether this is finite number of times or somehow it goes in infinite state, is called a loop. We can also use the term terminating loop for the loop, which allows the statement or statements to execute finite number of times, and non-terminating loop which allows a statement or statements to execute infinite number of times. So here as I have told you that we can apply a loop for finite number of times, and accidentally or somehow or by the mistake it may go into infinite number of repetitions. So in that case we'll have to break using some keystrokes. Otherwise the better way is to apply finite number of repetitions for any particular segment in the program. And it is very well known that repetitions are very important while doing any programming language or running any application in computer, because if you take an example of you know uh, restaurant. So if billing is going on in the restaurant after having meal, after having tea, coffee, snacks, etc., then a bill is created or bill is generated, and you will have to pay the Excuse bill. me, sir. Yes, Sir, there was no class on 2nd October. I know. I So why know were you asking? there was no class, but there was a celebration on 2nd October. Yes, sir, there was celebration. Yes, Uh, sir, I was there in assembly. you were in the assembly, so I was asking, did you attend that celebration? Yes, sir. Because from senior class there is only one you know video clip, uh, none from 11th, none from 12th, only from 12th Oh, there was so a might girl. be, sir, I'm not on the recording. Okay, fine. So let's start, let's continue with the looping. Okay, so means like we were discussing, like we were in any cafe or coffee shop or restaurant. So after having snacks, after having coffee or tea, a bill is generated against your name, and you will have to pay the bill and leave the restaurant. So again, so many clients are there, so many people are there who are having lunch, who are having snacks, who are having tea, etc., and everybody will get the bill, and against the bill they will have to pay the amount. So this is kind of a repetition. One person come, then he pays the bill. One another person come, then he pays the bill, and everybody has uh, got the bill, and in lieu of that bill they will have to pay the amount. So this is kind of repetition, because अगर आप ये देखें कि रेस्टोरेंट में केवल एक ही इंसान नहीं है जो कि चाय पी रहा है, एंड दैट इज वाई यू विल क्रिएट ओनली वन बिल. वहां पर तो आते और जाते रहते हैं.
तो जो प्रोग्राम विच इज क्रिएटेड फॉर जनरेटिंग द बिल, वो हर एक जो जो भी रेस्टोरेंट में आएगा, तो जो उसके लिए उसको बिल क्रिएट करना पड़ेगा। सो बिल क्रिएट करते वक्त उसे जो भी आइटम्स उसने प्रिक्योर किए हैं या कंज्यूम किए हैं, उनका उसको बिल देना होगा। तो वो जो चीज़ है, इसका मतलब ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, सपोज 11 o'clock, if this restaurant opens, and from 11 o'clock till uh, the night, like 10 o'clock, तब तक हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वहाँ जो कस्टमर्स हैं, वो आते रहेंगे और वो कंज्यूम करते रहेंगे, उनका बिल जनरेट होता रहेगा। और एक सोचने वाली बात यह है कि बिल जनरेट करने का तरीका तो हर एक किसी के लिए एक ही होगा। एक पैसेंजर, एक एक क्लाइंट आया, उसके लिए हमने बिल जनरेट कर दिया। दूसरा क्लाइंट आया, उसके लिए हमने बिल जनरेट कर दिया और उन्होंने पेमेंट किया। यानी हर एक जो भी कस्टमर है, हर एक के लिए हमने एक एक बिल जनरेट किया और वो पे कर दिया। तो आप ये देखिए कि सुबह से लेके शाम, यानी जब तक आपका रेस्टोरेंट का टाइम ओवर नहीं हो जाता, कस्टमर्स आते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, बिल देते रहते हैं। यानी बिल को उसने क्या कंज्यूम किया है, उसका रेट कितना कंज्यूम किया है, उसकी डिटेल, सारी डिटेल जब कंप्यूटर को दी जाती है, तो वहाँ से बिल जनरेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीवेयर ए रिपीटेशन एग्जिस्ट्स। विदाउट रिपीटेशन ये कस्टमर सर्विस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कस्टमर्स जो है रिपीट होते हैं, रिपीटेशंस होते हैं। एक कस्टमर आया, फिर दूसरा आया, तो शाम तक पता नहीं कितने कस्टमर्स आते हैं। एंड हर एक कस्टमर के लिए आपको एक अलग से बिल जनरेट करना होता है। लेकिन आप ये देखिएगा, बिल का जो कोडिंग होता है, वो यही होता है कि उसे क्या आइटम लिया है, हर एक आइटम का जो है यूनिट प्राइस कितना है, और जितने यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं उसका अमाउंट कितना आया, इसके अलावा उसने क्या कंज्यूम किया है, पूरे का एक सिंपल सा एक समरी आता है कि भाई दिस इज योर बिल और आप इसको पे कर दिए। हर एक कस्टमर्स के लिए होता है। तो कहने का मतलब रिपीटेशन यही चीज है कि एक बिल जनरेट करने को बार बार जितने कस्टमर्स होंगे उतने बार बिल जनरेट करना पड़ेगा। सो हियर लाइक एग्जाम्पल देखिए, हैपनिंग ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग से आपने शुरू किया, नून तक गए, नून से इवनिंग गए, इवनिंग से नाइट हुई और नाइट से फिर मॉर्निंग हो गई। और यही रेस्टोरेंट का सिस्टम होता है कि मॉर्निंग इट ओपन्स, दैन पूरे दिन चलता है। तो उसको हमने स्लॉट्स में तोड़ लिया कि भाई ड्यूटी लगा दी, रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप जो है नून तक करिए, नून से लेकर के इवनिंग तक का किसी और को दे दिया, इवनिंग से नाइट तक का किसी और को दे दिया। एंड नाइट को अगर वो शट डाउन हो जाता है, देन मॉर्निंग अगेन फिर सेम सिस्टम विल बी अप्लाइड। सो यहाँ पर जो है कस्टमर्स के लिए एक प्रोग्राम का रिपीटेशन चलता ही रहता है। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अगेन एंड अगेन विदाउट टर्मिनेशन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग लूप। लाइक अगर हम इस चीज को ये देख लें कि भाई नाइट में भी काम चल रहा है, नाइट से मॉर्निंग तक काम चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर आप ये सोचें कि नाइट में इसको हमने टर्मिनेट करना है या सिस्टम शट डाउन करना है, तो वो एक टर्मिनेटिंग लूप हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम टर्मिनेटिंग लूप हो जाएगा कि केवल और केवल शाम तक करना है, उसके बाद शट डाउन कर देना अपना सिस्टम। राइट। इसी तरीके से सपोज करिए कि अनदर एग्जांपल वी आर टेकिंग, सपोज करो मुझे एक 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, और उसको खोदने के लिए हमने क्या किया है, जैसे ही हमने खोदा फिर हमने उसको मेजर किया कि कितना हमने खोल दिया। सपोज जब हमने खोदना शुरू किया तो 5 फीट तक डिग करने के बाद हमने उसको मेजर किया कि अभी तो 5 ही हुआ है। देन अगेन विल स्टार्ट डिगिंग इट। तो हम खोदते चले जाएंगे और हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या 10 फीट का हमारा डिग हो गया। अगर नहीं हुआ तो विल रिज्यूम डिगिंग। तो कब तक हमें करना, जब तक कि वो 10 फीट की पूरा गड्ढा नहीं हो जाता है। तो जैसे ही 10 फीट का, देखो यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि अब अगर 10 फीट का नहीं होता है तो वापस डिग करना शुरू कर दीजिए और उसको मेजर करिए। और अगर क्या वो 10 फीट हो गया है, और अगर 10 फीट अगर हो जाता है, देन यू विल स्टॉप डिगिंग। सो यहाँ पर भी एक रिपीटेशन है
यानी यू यू कीप ऑन डिगिंग द दैट होल एंड आप ये चेक करते जाएंगे, जैसे ही आपने खोदना शुरू किया देन यू मेजर इट where this is 10 feet or less. If less, then again you resume digging, and कब तक जाएंगे? 10 फीट तक. तो दिस इज काइंड ऑफ रिपीटेशन. सो रिपीटेशन के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स होते हैं, और उन स्टेटमेंट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहले तो कंसेप्ट ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रिपीटेशन किस टाइप का होता है और हम उसको क्यों करना चाहते हैं. यानी जब तक किसी पर्टिकुलर टारगेट तक हमें कोई काम करना होता है और हमें चेक करते जाना होता है, और सेम वर्क जो है हमें उस टारगेट को अचीव करने तक के लिए करना पड़ता है. तो दिस इज कॉल्ड लूपिंग. क्योंकि एक ही काम जो है हमें बार बार करते रहना है जब तक कि हमारा टारगेट अचीव ना हो जाए, और जैसे ही हम टारगेट अचीव कर लेते हैं वैसे ही हम उस काम को रोक देते हैं. अब जैसे क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, तो ये जो है रिस्ट वॉच जो है नॉन टर्मिनेटिंग लूप है, क्योंकि रात के 12 बजते हैं उसके बाद अगला दिन भी शुरू हो जाता है, तो वो तो अपना काम करती रहेगी. तो कुछ नॉन फाइनाइट होते हैं और कुछ फाइनाइट होते हैं. तो ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कौन से फाइनाइट होते हैं, कौन से इनफाइनाइट होते हैं. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लूप्स. कि अगर आपने कोई भी टास्क जो कंप्यूटर को दिया हुआ है, आप ये चाहते हैं कि बार बार उसको हम रिपीट करें क्योंकि टास्क आपको अचीव करना है, तो उसको हम एक ही प्रोग्राम बार बार चलाते जाएंगे. जैसे कि सपोज करिए, जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 11th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो टीचर क्या कह रहा है कि आपसे सिग्नेचर करवा रहा है, आपका नाम ले रहा है, फोटोग्राफ ले रहा है, और उसके बाद आपसे 300 रुपीज ले रहा है, यानी एक स्टूडेंट ओवर. द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड विद द सेकेंड स्टूडेंट. जो भी स्टूडेंट आएगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा. और ये कब तक होगा? जब तक कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं. जबकि आपकी क्लास के जब तक सारे स्टूडेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते, तब तक आप इस काम को करते रहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, एंड दिस इज फाइनाइट रिपीटेशन, not infinite repetition. Hope the concept is clear about the repetition of the loop. Yes or no? Yes, sir. हम्म. Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं. हम अब कैसे रिपीटेशंस अप्लाई किए जाते हैं वो चेक करते हैं. आपकी इस सिलेबस में, पाइथन के सिलेबस में, ये जो सिग्नेचर साइंस बने हुए हैं, these science symbols are important and you should know about them, and they are used while designing any application or creating any program. So here, this is the elliptical loop, this is the ellipse in which start is written. Then this is the rectangular box in which we have made an assignment. This is kind of rhombus or parallelogram where opposite sides are parallel. We have used for other purpose, and again this is some for other purpose, and from beginning till end we are using some arrows. One इस तरीके से नीचे की ओर जा रहे हैं, and from last it comes upward. यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ आने के बाद हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाएंगे तो हम इसको करेंगे, इसके बाद फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे, and so on. Okay, so this is called the flowchart, and this is the concept of repetition. What is happening here? We are assigning n to 1. n की वैल्यू 1 हो जाती है, then we'll print it. प्रिंट करने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर n is equal to n plus 1, यानी n की वैल्यू को बढ़ाएंगे. This is n is equal to n plus 1. It means old value of n is substituted here,
and after the substitution 1 is added to this value, and after addition of these two, n will get it's a new value. So every time n keeps on updating itself, n की बार बार एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही आप प्रिंट करने चले जाएंगे. So this is called the infinite kind of loop. Infinite kind of loop जिसके अंदर आप नंबर बढ़ा रहे हैं, और नंबर बढ़ाने के बाद उसको प्रिंट करा रहे हैं. So this is infinite, any non terminating loop. तो ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए, ये सिंबल्स भी आना चाहिए. जब आप सिंबल ये वाला यूज करते हैं तो स्टार्ट या एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. ये जो है किसी भी फॉर्मूला जहां लगाना है वो, या कोई असाइनमेंट करना है वो, तो आप लगा सकते हैं. और ये जो है, ये अगर हम जैसे प्रोग्राम में इनपुट का जो यूज करते हैं किस नई वैल्यू लेने के लिए किसी वेरिएबल के लिए, या आउटपुट देने के लिए, तब हम ये यूज करते हैं, पैरेललोग्राम यूज करते हैं. और जब आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, असाइनमेंट करना है, तो हम ये रेक्टेंगल्स यूज करते हैं. तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. और फिर इससे क्या होता है, ये एरो जो हैं डायरेक्शन एरोज हैं, ये बताते हैं कि फ्लो किस तरीके का है. यानी हम ऊपर से आ रहे हैं नीचे की ओर, एंड नीचे से आने के बाद ऑल ऑफ सडन जो है ये ऊपर की ओर टर्न कर जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ आना. प्रिंट करने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज इसका फ्लो जो है नीचे की ओर है. ये डायरेक्शन एरोज हैं, तो जैसे ही नीचे पहुंचे, नीचे से लेकर के वो प्रिंट पे वापस आ गया. इसका मतलब ये है इस तरीके से वर्क करता रहेगा. सो दिस इज रिपीटेशन. और इसको जब हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है. यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट. अब हो क्या रहा है, ये यहाँ पर आप नोटिस करें कि रिपीट होता जा रहा है इस तरीके से. तो हमने यहाँ सिर्फ रिपीटेशन के लिए स्टेटमेंट यूज करेगा वाइल, और वाइल के साथ ट्रू, यानी दिस इज बुलियन है. यानी जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक आप ये काम करते रहिए. अभी हमेशा ट्रू ही रहेगा, बिकॉज कोई सिचुएशन ऐसी बन नहीं रही जहां ये फॉल्स हो जाए. तो क्या करेगा ये, n is 1 while true yes, then it will print the value of n, because एक ही alignment पर है, print and n is equal to n plus 1. So here 1 is printed, and after printing 1 it will come to this statement n is equal to n plus 1. So the previous value of n is 1, so 1 plus 1 is now 2. So after taking the new value of n, it will come to while again. No, it will not go Sir, to n. can we define any variable in place of true? Why not? This is just beginning. You just see. This is infinite loop. That is why I have put in true here. Otherwise, दूसरा प्रोग्राम देखे ना, इसमें लिखा हुआ है जो हम कंडीशन लगा सकते हैं, इस तरीके से कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, ये भी दिया हुआ है हमने. तो ये एक इनफाइनाइट एंड फाइनाइट दोनों को हमने लिया हुआ है. तो इनफाइनाइट इसलिए है बिकॉज यहाँ पर ब्रेक करने का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, तो हमने इनफाइनाइट कर दिया. कहने का मतलब है रिपीटेशन चाहिए. रिपीटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करना है और n की वैल्यू को अपडेट करना है. प्रिंट द वैल्यू ऑफ n एंड अपडेटेड. तो ये जो रिपीटेशन है वो हमें चाहिए था. तो जितने स्टेटमेंट्स रिपीट आपको करने हैं वो सारे के सारे एक रिपीटेशन स्टेटमेंट्स के अंदर डाल दीजिए, वो उसको रिपीट करता रहेगा. देखिए यहाँ पर जब तक, क्योंकि ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है, ट्रू ही रहेगा, फॉल्स नहीं होगा, तो आप ये नोटिस करेंगे कि प्रिंट करता रहेगा और n की वैल्यू बढ़ती रहेगी और ये वापस लूप में आता रहेगा, और लेकिन लूप ब्रेक नहीं होगा. दिस इज वन एग्जांपल. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग लूप. यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रिंटिंग इंटीजर्स 1 ऑनवर्ड्स, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग integers from 1. So initial value of n is 1. Is that clear? ये वाला कंसेप्ट आपकी समझ में आया है नहीं आया, पहले ये बताइए. दिस इज इनफाइनाइट लूप और नॉन टर्मिनेटिंग लूप यू कैन से. So understood.
सभी लोग, एवरीबडी आउट Yes, हियर? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो है रिपीट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और अगर ये रुकेगा नहीं तो हम वैसे हम करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। से n is equal to 1, गुड, while true, ये भी सही है। then I said print n, हमने ये भी ठीक कर दिया। और उसके बाद हमने n is equal to n plus 1 भी ले लिया। एंड उसके बाद देखें, ठीक है। तो मुझे जो है, मैंने कहा कोई स्पेशल की स्ट्रोक लेकर के, सर यस सर स्क्रीन मतलब प्रेजेंट नहीं हो रही है। अरे No, sir. It's all right. आप देखिए आपकी स्क्रीन प्रेजेंट क्यों नहीं हो रही है। केवल और नेट, ये तो नेट की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का ये है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो यूट्यूब पर आ रहा है इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मैं लिंक आपसे शेयर करता हूँ, अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें देख लीजिएगा। इस लिंक को चला के देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, सो बैक टू द प्रोग्राम। सो इसको मैंने स्पेशली इंटरप्ट किया है कोई भी की दबा करके, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग लूप था इसमें मैंने जो है बीच में एक कंट्रोल एंड ब्रेक यूज कर लिया। कंट्रोल एंड ब्रेक से ये एबनॉर्मली एब्रप्टली टर्मिनेट हो गया। तो ये अदरवाइज ये चलता रहता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने इस प्रोग्राम को चलाया है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने ये जो प्रोग्राम है, पहला जो पार्ट है, पिक्चर, पहली पिक्चर है, उसका प्रोग्राम हमने वहां बनाया है, ये वाला। ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपने ये देखा कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग था। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा, यानी कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था, एन की वैल्यू बढ़ रही थी, प्रिंट हो रहा है एन की। अब आप ये देखिए कि यहाँ एन बढ़ने के बाद वो यहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज अंडर वाइल, सो इट विल गो टू वाइल अगेन, it will not go to an or out of this loop, because this is under this loop only, because aligned program है, indented program है। तो जितने भी लाइंस इस इंडेंट में आएंगे, इस कॉलम पर आएंगे, वो सारे के सारे वाइल के अंडर होंगे। जैसे सपोज करिए कि n इज इक्वल टू एन प्लस वन मैं बाहर कर दूं, अगेन सी ये जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पर, ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, while true, sorry, while
ठीक है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एन, ये भी सही है, लेकिन n इज इक्वल टू n प्लस वन मैंने यहाँ नहीं लिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज n इज इक्वल टू n प्लस वन नहीं लिया, और अगर मैं लिखता भी हूँ उसको, तो वो जो है अगर मार्जिन के बाहर लिखता हूँ तो 243 ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा, या वो वापस n पर नहीं जा पाएगा जहां पर हमने 1 असाइन किया हुआ है। ये 243 लास्ट में हमारा टर्मिनेट हुआ था, वहां से ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। मैं क्या करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि इसको अगर मैं एक प्रोग्राम बना करके देखूं तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा। n is equal to 1 while true print n। अब जो n is equal to n plus 1 जो मैं करना चाह रहा था, नाउ दिस इज n is equal to n plus 1, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको रन कर, ये मैं रन करा के दिखा चुका हूँ। अब मैंने चेंज क्या करना था, चेंज ये करना था, इसको मैंने यहां से इस लूप के बाहर कर दिया। अब देखिए इसको जब रन करेंगे, एग्जाम्पल लूप, अरे मैथ्स नहीं है उसमें, अरे वो ट्रिक्स नहीं, मैथ्स नहीं होती, ट्रिक्स वाली मैथ्स होती ये देखिए y1 because n is equal to n plus 1 is not being executed। जैसे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट के साथ साथ n is equal to n plus 1 भी तो एग्जीक्यूट हो, सो दैट n की वैल्यू बढ़े आगे, वो तो बढ़ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोबारा से इसको एडिट करके इसको लेकर के आना पड़ेगा, यहां पर इस कॉलम पर आ गया, दोनों एक ही रेंज पर आ गए। नाउ रन इट, अब ये हो जाएगा। You got the concept of repetition? कंसेप्ट आपकी समझ में आया? Yes, sir. किस तरह से रिपीट हो रहा है, कब रिपीट नहीं होगा। सो दिस इज एंटायरली ए नॉन टर्मिनेटिंग लूप, या हमने टर्मिनेट करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। और अगर इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा और चेंज करें, जहां पर हमने लिखा है ये इनपुट ले लिया, एक नंबर ले लिया, और इस नंबर, जैसे हमने ये कहा कि मुझे n तक जो है काउंट्स प्रिंट करने हैं, तो देखिए यहाँ पर c इज इक्वल टू 1, n मान लीजिए आपने ले लिया 10, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सो लेस तो है ही, सो इट विल प्रिंट 1। देन क्या, c is equal to c plus 1, so the value, old value of c is 1, so 1 plus 1, the new value of c becomes 2। now 2 is less than 10, again it will print 2, और ये कब तक प्रिंट करेगा, जब तक कि आपका n तक की वैल्यूज जनरेट ना हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज द फ्लो चार्ट, स्टार्ट, input the value of n, so this is this statement, c is equal to 1, this is ये वाला बॉक्स, this statement is given in this box, assignment box। देन हमने कंडीशन लगाया, कंडीशन में हमने देखा कि c को c बढ़ाते जाना है और प्रिंट कराते जाना है। सो c इज इक्वल टू c प्लस 1, दिस इज एक्चुअली बेसिकली दिस इज रॉन्ग, ये मैंने गलती कर दी, और गलती में ये प्रिंट पहले आना चाहिए था और c प्लस 1 बाद में आना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल डेज का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रिंट के लिए हमें वही पैरेललोग्राम लेना है और इनपुट के लिए पैरेललोग्राम लेना है। देन हमने यहाँ चेक किया, ये जो कंडीशन आपकी है वाइल वाली, कि अगर c से लेस या इक्वल है तो वापस आप c की वैल्यू बढ़ाइए और प्रिंट करा दीजिए, और अगर वो इसके इक्वल हो जाता है देन यू मस्ट स्टॉप इट, सो इट विल प्रिंट 1 to n। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं।
n is equal to input then c is equal to 1 while c less than equals to n print c को हमने बढ़ा दिया c is equal to c plus 1 ओके सो अब इसको आप सेव करें और रन करें इसको हम कुछ लिख देते हैं लिमिट मैंने ले लिया से 5 1 2 3 4 5 अगर इसको दोबारा रन करेंगे तो आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर ये रिपीटेशन चला Hope this program is clear and examples are also clear. This was non-terminating loop and this is terminating loop. आगे बात समझ में? Yes, sir. Okay. So अब चलते हैं नेक्स्ट पर अपने पे. So what's next? This is the syntax. Syntax क्या होता है कि how a command you should write into your program. प्रोग्राम के अंदर किसी भी कमांड को कैसे यूज करना है the way of writing the command within the program or way of incorporating the program within the program is known as the syntax. So over here the first loop is while and while के लिए हमने लिया है ये syntax. Syntax में है while देन आपको यहाँ पर देना है कंडीशन. जो एंगुलर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं वो इसलिए लगे हुए हैं कि आपको कंडीशन लिखना है ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं. कंडीशन लिखना है लेकिन ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं. ये लिखने का तरीका होता है. एंड देन आपको लगाना है कोलन. कोलन के बाद फिर जितने भी स्टेटमेंट्स आपको इस वाइल से रिपीट कराने हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट जैसे 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट देखिए इनका जो मार्जिन है वो देखते जाइए. ये देखिए 2 स्पेसेस का मार्जिन हमने लिया. कोलन के बाद जो बाय डिफॉल्ट है वो 2 स्पेसेस का होता है. आप कम से कम 2 स्पेसेस होने चाहिए. बाकी जब आप डिफॉल्ट देंगे तो हो सकता है 4 स्पेसेस हो तो उसी पे चलते रहिए कोई इश्यू नहीं है. लेकिन गैप जरूर चाहिए क्योंकि वो it shows that this statement is under this loop. So over here you see 1 statement, 2 statement, 3 statement up till n statements you can give under the while. Okay, it means as long as this condition is true, all the statements lying under this while are repeated. And as soon as this condition becomes false, you will come to else. Like if while also has else which is optional. लेकिन आपने देखा होगा कई सारे प्रोग्राम बुक में भी देखा होगा else वहां पर नहीं होता.
but else is optional. You, if you want to incorporate else along with the while, you can incorporate. Otherwise, if you want to omit it, you can omit it. It means as long as this condition is true, these statements will be repeated, and as soon as it becomes false, if else is there, then the statements lying under else will be performed. Otherwise, it will come to out of the scope of the while. जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, मैंने कहा दिस पार्ट इज ऑप्शनल, एल्स पार्ट इज ऑप्शनल, सो हियर दिस इज written. Now this is the example, like we are printing the table, or you can say the even numbers. मेरे हिसाब से this is the table of it could be the table of 2, and it could be the program for generating even numbers. दोनों ही हो सकते हैं. तो चलिए हम जो आपकी समझ में आता है वैसा करके देख लेते हैं. ठीक है. टू सी, तो लिमिट कितनी चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए. मैं 10 तक का चाहिए, तो 10 तक में हमारे 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी. और आप चाहें तो कह सकते हैं कि मैंने इस लिमिट तक के सारे इवन नंबर्स प्रिंट करा लिए. प्रिंट एंड even numbers. Okay, even numbers are there. Is there any doubt? Means no doubt. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको एक नया कमांड देखने को मिलेगा, एंड द कमांड इज ब्रेक. यार आप लोग ये गाली करो, ये बकवास जो है चीखे जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या क्लास चल रही है? मीन्स ऋषभ, ये सब्जेक्ट मतलब सितंबर ओवर हो चुका है, स्टिल यू आर थिंकिंग ऑफ, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ओवर होने वाला है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, देन व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर? ये आपको पहले सोचना चाहिए था. फिर आगे क्या करोगे? स्विच ऑन योर माइक एंड जस्ट आस्क. आगे क्या प्रोग्राम है ऋषभ आपका?
हाँ, तो हो सकता है कि पढ़ाई भी में आपको मन नहीं लग रहा हो। एनीवे दिस इज योर लाइफ, योर रूल। भाई यहाँ तो पढ़ाई होती है। जस्ट लीव। नो। ये वेम्स एंड फैंसीज नहीं है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है। उसके बाद क्या करना है ये पता नहीं है। 11th क्लास में आके अभी यही पता नहीं है। चलिए, यू डिस्टर्ब द सेशन। आप निकलिए यहाँ से। ओके। और जबकि वो मैंने पता नहीं कब पढ़ा था, लेकिन जब मैंने हाल फिलहाल में एक बच्चे को पढ़ाया तो उससे मेरे को आंसर आ गया। सो यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिल रही है। कुछ नहीं करना है। यू जस्ट सेट वाइल ट्रू, यानी जब तक ट्रू है तब तक चलते रहिए। एन इज इक्वल टू, आपने एक लिमिट लिया, और लिमिट अगर एन की वैल्यू का 0 होती है तो आप बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज इट विल गिव यू द प्रोडक्ट ऑफ whatever the value of n is given, so it will be multiplied by 5. सर अगर इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो एरर आएगा ना? बिल्कुल डेफिनेटली एरर आएगा, या फिर आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज वो मार्जिन के बाहर निकल जाएगा। मार्जिन के बाहर निकलने का मतलब है कि वो स्कोप से ही बाहर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। सो वील हैव सम अदर प्रोग्राम्स ऑन वाइल। सो मेरे ख्याल से कल भी आपका सेशन है। यस सर। कितने बजे? 12:30? सर इन आफ्टरनून। 12:30 यस बजे ना? सर। ठीक है। सो यस सर। वील रिज्यूम दिस सेशन एट 12:30। अभी जो है पीटीएम के लिए मुझे थोड़ा अरेंज करना है, तो हम अगले उसमें लिखते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए। ओके बेटा, चलिए।